Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Non-communicable disease. Here's the non-communicable disease. There's the most important topic. The first here is the diabetes. Diabetes mellitus. There is a non-communicable disease is a diabetes is a mellitus. The disease can be a diagnosis by the blood test or urine test. There are diabetes case. There's a causes here the less secretion of the insulin hormone from a pancreas and the mental stress. There is a most important for the diabetes patient. There is a take of mental stress. There are mental stress is causing good for the diabetes through their heredity and the parents to be child. There is a heredity for the parents to child diabetes, and there is a symptom their symptom is more glucose in the blood and excessive to the frequently passing of urine, and the feeling of thirsty and angry frequently, and the reduced to the healings is a capacity of injury and general weakness of the body, and the in the extensive case of diabetes is a coma can be take place making to the patient is a unconscious. There is a most important symptom here, and their prevention and the curve there is a control the exclusive weight of body is the most important here. Regulate the control of diet in to be taken. There is a most important here. There are controlled diet to be taken. And the next year the food should be not be contain sugar is a much carbohydrate. There is a most important the food should not be contain of sugar much of carbohydrates, and injection of insulin before a meals if required only on the doctor prescription. The next is a cardiovascular disease. There, cardiovascular disease is a common cause. There is a deposition of the cholesterol, a kind of fat in the wall of coronary arteries, which is the restricted the flow of blood to the heart muscle. This lead to the heart attack. There is a due to the reduce of blood supply and reduced to oxygen available to be muscles, and the heart's efficiency is affected. And there is a due to the stress and strain. There is the most important, and obesity is overweight. There is a main, and here is the most important to the hypertension mean high blood pressure and regularly, and there is symptom here. The symptom is a persistent high blood pressure (BP), and it may damage to the arteries of kidney. There is a damage for arteries of kidney, and in an extensive or case of arteries may burst in the bloodness and may be caused. It may be also cause of paralysis. There is also called to the paralysis here, and the next is a prevention and curve there. Do not build up to mental tension here, and the low fat diet should be taken. There is most important prevention. Low fat diet should be taken, and the weight of body must be keep under control. There is a weight of body must be keep under control, and this is condition your hand, and good eating habits should be a cultivated. There is a good eating is a habit should be a cultivated, and the medicine may be taken as per doctor advice. That is the most important prevention and curve here. The next here is a coronary heart disease. There is a symptom first of all here a severe pain in the chest, gasping and breaths, an intense of nasal and vomiting, and the lot of sweating take place, and the blood clot may be formed within blood vessels. There is a coronary heart disease, and their prevention. The prevention and cure here a diet low in a saturated fat may be control the formation of cholesterol. That is the first important here. And the sound eating habit should be developed, and the overweight should be checked, and avoid smoking, alcoholic drink and drugs, and take a treatment under a qualified doctor, not a jhola chap. And here electrocardiographic ECG can be diagnosis to disease. There is a most important electrocardiograms is a ECG is a diagnosis of disease, and bypass surgery is a performed in extremely case. There is the most important here. Now our next topic is osteoporosis. Osteoporosis is here. Osteoporosis is a age
depending or disorder with the loss of the normal density of bone. Their bone become a faultless and are easily fractured. And the bone that is affected by their osteoporosis can be fractured with only a minor fall of injury. The elder man and woman are most susceptible because of hormonal change which occur with the advancing age. And there is symptom here. The person suffering from a osteoporosis process is maybe not be about their condition from a long time because osteoporosis is does not be cause a clear cut symptom and one maybe not be realized till a bone fracture. The symptom of the osteoporosis are related to the location of the fracture, and the fractures of the spine can be caused a cerebral is a band-like as a pain that radiate around from the back to the side of the body, and repeated spine fracture can cause a chronic lower back pain as well as curving of the spine which give to the individually as a handshake and is a back appearance. And the next year, and some patient is the osteoporosis is the development stress fracture of the feet while they are walking and stopping off. Hips and fracture are typically occur as a result of fall with the osteoporosis is a hip fracture and can occur upon is a even minor accident. Hip fracture is maybe take a very long time to be healed because of poor bone quality. The next year treatment. The treatment is a patient suffering for the osteoporosis process are generally treated with the vitamin D and calcium is a supplements. In addition, they are advised to bed rest and so that a condition does not be worsen. And the change to be the lifestyle and diet are also recommended. The patient are advised to take a calcium either by diurese is a mean to be by supplement in the form of tablet. And the science is a body absorb about 500 mg calcium at the given time. The calcium intake should be spread throughout the day. And exercise also helps to protect a person from a risk of getting osteoporosis. And however, it is important to be exercise for osteoporosis under to the guidance for a professional is a physiotherapist. The next area is a cancer. The cancer it is a uncontrolled and unwanted growth of cell. That is called cancer. The cancer here uncontrolled and unwanted growth of cell. That is the causing of cancer. The causes of not defined as a cause has been arrived at a far so far, and however it is found that the body has a proto is on causes. There are activated by some substance or stimulus which is a convert this into the active cancer causing is on causes. And the hair heavy smoking and alcoholism is a causing of cancer, and swelling of tobacco causing of cancer, and constant irritation of skin repeated injury at some point. And cancer is a kind of tumorous growth, so tumors can be classified into two categories. The first is a Bengal's tumor. It is mainly confined to the place of origin and does not be spread to other body part. Its relative is a harmless. The next here is a malignant tumor. The malignant tumor spread to the other part of body and growth is a rapidly. This is a serious and maybe cause of death of patient. There is the most important here, the malignant tumor and their symptom. The symptom is a precedent of lumps of thickening in the tissue, and especially is the tongues, breast, uterus. And second is any irregular bleeding of blood is stainings of discharge from any body opening, and any sore that does not be heals or quickly, and change in the form of moles or warts, and present of the hardness in the voice, cough and difficulty the swelling. The next is the prevention and cure. The cancer checkup should be done once a year. A treatment should be taken under to medical advice and avoid to smoking, talking alcohol and the chewing of tobacco. Observe to regularity of lifestyle, keep a body healthy. The next here is allergy. The allergy here include a group of non-infection disease. There is a non-defined causing of now. It is a belief that is occurred due to the
hypersensitiveness of a content individually to foreign matter, there is allergens which may be entered inside the body, and symptom may be a sneezing, gasping, running of eyes, irritation of throat or tracheas, and the allergens may be a pollen, grain, feathers, and some animal insect drugs as a medicine and odor. तो यहाँ पर जो हमने पहले बात किया था वो था संचारीय रोग। अब जो हमारा गैर संचारी रोग जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, यानी ये जो होती है फैलती नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये आपको कुछ गलतियों की वजह से ये बीमारी जो होगा हो जाने के चांसेस बढ़ जाता है। जिसमें सबसे पहले तो यही आता है मधुमेह। देखिए इसको हम डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, और डायबिटीज़ तो कहते हैं हर एक 5वां बंदे को जो है डायबिटीज़ के वो शिकार है, और डायबिटीज़ से हर एक व्यक्ति जो है परेशान है। कहते हैं इस रोग का पता रक्त एवं मूत्र परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगर जर्नली अगर आपको चेकअप नहीं करवाना है तो आप चीटी की जगह कहीं भी टॉयलेट कर दीजिए। अगर चीटी बाथरूम में लग जाता है तो इसका मतलब आपको शुगर बढ़ा हुआ है। ये जर्नली टेस्ट है। देखिए पहले के समय में ये सब चेकअप नहीं हुआ करता था, टेस्ट नहीं हुआ करता था, तो लोग जर्नली अपनी मेथड से ही अपना इलाज खुद ही किया करते थे, जो कि बहुत आसान था। लेकिन आज जो है भागम भाग दुनिया में हर चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो ये कहते हैं मधुमेह भी जो है उसी में से एक बीमारी में से एक आता है। कहते हैं इस रोग का पता रक्त जांच द्वारा होता है। अगर हम कारणों की बात करें तो अग्नाशय इंसुलिन का कम स्वास्थ्य के कारण भी होता है। ठीक है, और इसका कई कारण जो होता है भोज्य पदार्थ ही होता है। अगर इसमें सबसे बड़ा बात तो हो जाता है उन व्यक्तियों को ये अधिक होता है जो मानसिक तनाव रखते हैं हमेशा, यानी उनके अंदर जो है कोई ना कोई टेंशन हमेशा बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है डायबिटीज़ यानी मधुमेह बीमारी होना आम बात होती है। ये बीमारी कभी कभार जो होता है वंशागत भी होती है, यानी माता पिता से बच्चों में जाने की चांसेस जो होता है बना हुआ रहता है। अगर यहाँ बात करें लक्षण का तो इसमें तो सिंपली सी बात है कि रक्त में अधिक जैसे जो कोष हो जाता है, अधिक व परंपरता मूत्र त्यागने की आवश्यकता पड़ती है। साथ में ये भी रहता है कि प्रायः प्यास एवं भूख लगते रहना भी इसका मुख्य लक्षण देखने को मिलता है। घावों को भरने में बहुत देरी होती है, तो ये बहुत काफ़ी गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती है। ठीक है, घाव को जो है जल्दी नहीं भरती है, बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि शुगर होता है उनके बॉडी में, ब्लड में, तो इसमें जो है इसमें जल्दी से घाव नहीं भरते हैं। सामान्य शरीर कमजोरियाँ आने लग जाती है, और विकट स्थिति में जो है रोगी मधुमेह यानी मधुजय मतलब उत्पन्न संन्यास कोमा में जा सकता है और बेहोश भी हो सकता है। तो ये बहुत काफ़ी गंभीर में बात आ जाती है। अगर बात करें यहाँ रोकथाम एवं उपचार की तो कहते हैं शरीर के भार पर नियंत्रण रखें, यानी मोटापा कम करें, जितना हो सके जो है डाइट ले फैटी भोजन को त्याग दें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नियमित और नियमित आहार लेना जरूरी होता है, यानी सही आहार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन में अधिक शर्करा और अधिक कार्बोहाइड्रेट न ले, यानी शर्करा यानी चीनी वाले पदार्थों को और जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को कम से कम ले, जिससे कि जो है आपको डायबिटीज़ न हो। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो खा पी के भी हम डायबिटीज़ को बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं आज बात कौन समझता है, कौन जानना चाहता है। ठीक है, भोजन में अधिक शर्करा न ले और अधिक कार्बोहाइड्रेट भी न ले। यदि आवश्यक हो तो भोजन से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन सिर्फ चिकित्सक के परामर्श से लिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो हृदय वाहिका रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की बात करें, लेकिन इससे पहले मैं एक बात हमेशा कहूँगा दोस्तों, जो हमेशा बात आपको कहता भी हूँ कि जितना हो सके दोस्तों इस लिंक को शेयर कीजिए, जितना हो सके दूसरे बच्चे तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए कहते हैं जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो मैं कैसे कोशिश कर सकता हूँ। कहते हैं एक हाथ ताली कभी नहीं बजती है। कहते हैं अगर आप देखिए आपके लिए मैं इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा प्रयत्न हमेशा यही रहता है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा करूं, तो आपका भी प्रयत्न होना चाहिए ना कि आप जितना हो सके इसको दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में अग्रसर रहें, क्योंकि त्रिपाठी सेंटर जो यही बात हमेशा रखता है कि उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें बहुत कुछ है, बहुत डिजिटलाइज है या बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जो भी है आपके लिए सफिशेंट है, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है और आपके लिए पर्याप्त है। कहते हैं अगर आप ये भी समझ लेते हो, ये भी कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ को देखने की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए त्रिपाठी सेंटर जो है पूरा का पूरा सिलेबस ही जो यहाँ कवर कर लिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी आपके लिए रखता है। तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, जितना हो सके जो है बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके दूसरे बच्चों को भी बताइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। कहते हैं अपना कल्याण कर लेने से जो जग कल्याण नहीं हो सकता, अपना के साथ दूसरे का भी हो तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ये बात आपको भी पता होगा कि जब हम किसी के हाथों पे मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी जिस पे हम लगाते हैं उस पे मेहंदी का रंग तो चढ़ता ही चढ़ता है, प्लस आप पे भी चढ़ जाता है।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप दूसरे का शेयर करते हो तो आपको क्या ज्ञान भी प्राप्त होगा और आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। कहते हैं बीमारियाँ इतने सारे हमने पढ़ा, इसमें यही बात थी कि हमारी गलतियों की वजह से ये बीमारी होती है। अगर मान लीजिए ये वीडियो किसी और बच्चों के पास गया, अगर उन्होंने भी देखा तो वो भी ये बातों को समझ सकते हैं और जितने भी व्यक्ति जो डायबिटीज़ या कोई भी तरह की बीमारी के जो ग्रसित है उनको भी हेल्प मिल सकता है, चाहे वो भोजन पदार्थ में क्यों ना, क्योंकि भोजन पदार्थ के भी हमने न्यूट्रिशन वैल्यू पे हमने वीडियो देखा जाना, उसमें बहुत बातें ऐसी थी जिससे हम लाखों बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो जितना हो सके दोस्तों उसको शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, लिंक को जो है कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। तो ये तो चलिए आपके लिए था। अब देखते हैं हमारा हृदय वाहिका रोग। देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, यानी इसका मतलब यही होता है हृदय वाहिका, यानी हृदय से संबंधित रोग है। सामान्य कारण इसका यही होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आपको पता है कि बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है इसके विषय में मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ऑयली चीज़ खाने से होता है, चाहे बर्गर खाओ, चाहे कोई भी चीज़ अगर अधिक मात्रा में ऑयल सेवन करते हो तो इसका मतलब जो है आप कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो चुके हो। एक प्रकार की वाशाई होती है, यानी ये जो है फैटी होती है का जो है रक्त वाहिनी धमनी में निरस्त जिसे जमा होना। मैंने पहले आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो है नसें हैं वो एक पाइप की भांति है, अगर उसमें जैसे पाइप में अगर मिट्टी जम जाने की वजह से क्या होता है, अगर पानी का फ्लो सही से नहीं आता, उसी प्रकार जो होता है जो हमारे जो है नसों में जो है फैट जम जाएगा तो इसका भी जो है ब्लड का जो है संचारण सही से नहीं हो सकता, तो इसके वजह से जो है ये बीमारी हो जाती है। तो जितना हो सके बासा युक्त भोजन को जो है परहेज करने की कोशिश करें। हृदय की पेशियों में रक्त का प्रभाव विरुद्ध हो जाता है, जैसे जो है दिल का दौरा, हृदय घात भी पड़ जाती है। अब देखिए हार्ट अटैक को होने का भी कारण यही होता है, क्योंकि वो पंचिंग नहीं कर पाता है, हार्ट ब्लड आगे नहीं पहुँच पाता है और हार्ट में ही जो है ब्लड रह जाता है, तो इसकी वजह से वो जो है कार्य करना बंद कर देता है, जिसको हम हार्ट अटैक के नाम देते हैं। अगर देखा जाए तो कम मात्रा में रक्त की आपूर्ति कारण पेशियों की जो है उपलब्ध ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे हृदय की क्षमता जो है प्रभावित काफ़ी होती है। इसमें जो है मानसिक तनाव के कारण भी जो है हार्ट अटैक होने के कारण बन सकती है, यानी हृदय वाहिका रोग होने का जो है सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव भी हो सकती है। मोटापे के कारण भी ये बीमारी जो है आपके बॉडी में घर कर सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अति रक्तदाब, यानी हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। देखिए ये तो आपको पता है कि जनरली आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हो सबसे पहले आपको बीपी ही वो चेक करते हैं, ठीक है, बीपी चेक करते हैं और देखते हैं कि आपका बीपी हाई है कि लो है। सामान्य रूप से हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि बीपी के जो सामान्य लक्षण होते हैं 120 ±5 होता है और इसको 80 ±5 लिया जाता है। तो ये हाई या लो की बात बताया है मैंने। कहते हैं कि लक्षण देखा जाए तो इसमें जो है लगातार उच्च दबाव जो है रक्त दाब बनी रहती है, यानी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसके जो है मुख्य गुर्दों की धमनियाँ क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। अब देखिए इससे किडनी के जो गुर्दे होते हैं वो भी जो होती है काफ़ी क्षतिग्रस्त होने की चांसेस बढ़ जाता है। चरम स्थिति में जो है धमनियाँ फट सकती है और अंधापन संभावना बढ़ जाएगी। देखिए इससे अंधापन भी हो सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने रखा है यहाँ पर। इसे पक्षघात भी हो सकता है, यानी लकवा भी मार सकता है, यानी बॉडी जो है पैरालाइज भी हो सकता है। अगर बात यहाँ करें रोकथाम एवं उपचार की, इसमें सबसे पहली बात तो दोस्तों यही आता है कि मानसिक तनाव न बढ़ने दें। मानसिक तनाव जितना हो सके कम करें, जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है। कम बासायुक्त भोजन किया जाना चाहिए जिससे मोटापा कम कर सके। शरीर का भार नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है। अच्छी आहार प्राकृतिक विकसित करनी चाहिए, खाने की अच्छी आदत डालनी भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। चिकित्सा के परामर्श के अनुसार दवाइयाँ ली भी जा सकती है इसके रिगार्डिंग। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष आता है हृदय धमनी रोग, यानी कॉरोनरी हार्ट डिसीज़। देखिए ये जो होता है कॉरोनरी हार्ट डिसीज़, कहते हैं इसका लक्षण जो है सामान्यतः यही देखने को मिलेगा कि छाती में तेज़ दर्द, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाता है, तेज़ मिचलियाँ आने लग जाती है, उल्टियाँ होने लग जाता है, काफ़ी पसीना आता है बॉडी में, रक्त नालिका में रक्त का थक्का बन सकता है। तो कॉरोनरी हार्ट डिसीज़ जो है बहुत खतरनाक ही होती है। अब यहाँ पर देखा जाए इसका उपचार क्या है। अब यहाँ पर बात करें रोकथाम में उपचार की, तो आपको पता ही है कि कम समृद्ध बासायुक्त आहार से जो है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण रुक सकता है। तो जनरली सी बात मैंने पहले ही कहा था कि बासा से ही भोजन यानी फैटी एसिड खाने से वजह से ही होता है। अगर फैट आप कम लो तो ये बीमारी से जो है हमेशा के लिए छुटकारा आपको मिल सकता है, क्योंकि आप लोग भी तो वही होगी कि कहते हैं तेल वाला चीज़ खाए बिना रह नहीं सकती। तो आप अपनी आदत जब तक चेंज नहीं करोगे इस बीमारी से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। कुछ बीमारी जो होते हैं हम खुद ही लेके आते हैं
और वो बीमारी से हम स्वयं ही परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका अपना विचारधारा है। अच्छी आहार प्राकृतिक विकल्प करें, खाने की अच्छी आदत डालें, ठीक है। जो अति भारत यानी मोटापा नियंत्रण रखें, धूम्रपान, मदिरापान, नशीला पदार्थ का सेवन न करें। देखिए यहाँ बात लिखा हुआ है कि धूम्रपान, मदिरापान और नशीला पदार्थ न करें, लेकिन कहते हैं कि हर कोई जो है इसको ही प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बीमारी खतरनाक होता है, तो आप इसका सेवन अभी बंद कर दें, क्योंकि ये ज़रूरी भी है और आपके जो है अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए ये इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रख दिया। कहते हैं अगर एक योग्य चिकित्सा से इलाज करवाएं जो योग्य हो, अयोग्य चिकित्सक से नहीं, योग्य चिकित्सक से विद्युत हृदय लेके यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी रोग जो है निदान हो सकता है, और ईसीजी से हम जो है इस रोग का पता लगा सकते हैं। चरम स्थिति में जो है उपमार्ग यानी शल्यक्रिया यानी बाईपास सर्जरी से भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगला जो हमारा है बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है अस्थि सुरोगता यानी अस्थि प्लस सुशीर सरंध्र से ये निकला है, इसलिए इसको जो है ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अस्थि जो है सुप्रोसिस यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है हृदय अस्थि यानी छिद्र स्थिति इसमें से बना हुआ है। कहते हैं आयु पर निर्भर एक विकार है जो कि अस्थियों के सामान्य घनत्व में हर्ष के कारण ऐसा उत्पन्न होता है। कहते हैं इसमें हड्डियां जो है भंगुर यानी कमज़ोर हो जाती है, काफ़ी वीक हो जाती है और आसानी से टूट भी जाती है, यानी बहुत जल्दी ये फ्रैक्चर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित जो है हड्डियाँ मामूली गिरने या घात से बहुत आसानी से टूट जाती है। बढ़ती उम्र के साथ जो है हार्मोन के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बड़ी उम्र के स्त्री पुरुष और इसी जो है रोग के विकार होते हैं। हड्डियों से कैल्शियम को झड़ जाने के कारण ऐसा देखने को मिला है। अगर बात करें यहाँ पर लक्षण के, तो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित व्यक्ति काफ़ी लंबी अवधि तक आसानी से अनभिज्ञ रह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं लगता, क्योंकि इसके जो है स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए अस्थि रोग होने से पूर्व इसका पता नहीं चल पाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण जो है अभिभंग की स्थिति में संबंधित होते हैं। अगर बात किया जाए मेरुदंड में, तो अभिस्थ भंग के कारण जो है बैंड तेज दर्द जैसा सूल हो सकता है, यानी ब्रेन में दर्द रहता है जो शरीर को पृष्ठ भाग से किनारे की ओर बढ़ाता है। अगर कहते हैं बारंबार मेरुदंड अस्थियों भंग से जो है चीरकालिका पीठ का दर्द व मेरुदंड की जो है वक्रता उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यक्ति जो है कुबरा हो जाता है, यानी कुब्बर हो जाने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। अगर बात करें अगली पॉइंट की, तो यही बात बताया कि कुछ रोगियों में जो है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण चढ़ने या उतरने पर जोर पड़ने से पाँव में अभिभंग भी हो जाता है, यानी गिरने पर कूल्हे की हड्डी टूट भी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण मामूली से दुर्घटना जो है कूल्हे की अस्थि टूट सकती है, जिससे स्वस्थ होने में घटित दर्द यानी कोटि की अस्थियाँ स्वभाव के कारण काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखती है। अगर बात करें इसके उपचार की, तो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित रोगियों के उपचार में जो है सामान्यतः विटामिन डी और कैल्शियम के जो संपूरक यानी सप्लीमेंट दिए जाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए उन्हें आराम की सलाह भी दी जाती है। बात किया जाए जीवन शैली में परिवर्तन की, तो सलाह भी दी जाती है कि रोगियों के भोजन के माध्यम या संपूरक के रूप में कैल्शियम लेने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि शरीर एक समय में लगभग 500 किलोग्राम कैलोरी जो है कैल्शियम का अवशोषण कर सकती है। अंततः कैल्शियम का अंतर्ग्रहण संपूर्ण दिवस में विस्तृत रहना चाहिए। तो ये काफ़ी उपचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। कहते हैं अगर व्यायाम की बात किया जाए, तो व्यायाम द्वारा भी इस खतरे से बचा जा सकता है, लेकिन जो है ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में एक पेशेवर भौतिक चिकित्सा के मार्गदर्शन में ही व्यायाम किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम डॉक्टरी सलाह न लेते हैं तो ये हम पे विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। अगर बात करें हम कैंसर की, तो कैंसर तो आपको पता ही है कि बहुत खतरनाक बीमारियों में जाना जाता है। कहते हैं ये कोशिकाओं के अनियमित अवांछित वृद्धि होती है। अगर जनरली बात हम देखें, तो कैंसर का मतलब यही होता है दोस्तों कि अगर कोई अंग को अगर आप इरिटेट करते हो, तो वो जो होगा अपने आप में मल्टीपल डिवीजन करने लग जाएगा, यानी वो अनवांछनीय वृद्धि करने लग जाएगा, जिसकी वजह से कैंसर होगा। तो ये जर्नली आप देखते हो कोई चीज़ को इरिटेट करोगे तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेगा, यानी कहीं भी कोशिकाओं को इरिटेट करोगे तो कैंसर का रूप धारण करेगा। कहते हैं अगर कारण देखा जाए इसमें, तो यही बात यहाँ पर आता है सामने। अगर इसके कारणों पे हम बात करें, तो हमें पता लगता है कि सभी तक इसके कारण का निश्चित रूप से पता नहीं लगा पाया है, लेकिन यह
पाया गया है कि शरीर में जो है एक कोशिकीय अवजीन यानी प्रोटोऑक्सीजेंस पाए जाते हैं। ये कुछ पदार्थों को उद्दीपक द्वारा सक्रिय हो जाते हैं जो इन्हें सक्रिय कैंसरकारी अवधि में बदल देते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं अभी तक कारण का भी कोई पता नहीं लगा है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से जो होता है ये आपके समक्ष आ जाता है। कहते हैं इसका कारण सबसे बड़ा अधिक बनता है वो है अत्यधिक धूम्रपान या मदिरापान करने से कैंसर होती है। तम्बाकू को चबाने से भी ये कैंसर हो सकता है। त्वचा में स्थायी जो है समोपन, एक ही जगह पर बार बार चोट लगने से भी कैंसर हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि कोई ऑर्गन को अगर आप इरिटेट करते हो तो कैंसर कोजिंग होगा ही होगा। मान लीजिए बार बार आपको एक ही जगह पर चोट लग रहा है, बार बार आपको उसी जगह पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोशिका क्या करेगा, बहुत गुस्सा आ जाएगा और अपने आप में ही मल्टीफेज डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। तो ये बातें पे आपको ध्यान रखना है कि बार बार एक जगह पे चोट ना लगे, या आप तम्बाकू को बार बार सेवन ना करो, धूम्रपान ना करो, मदिरापान ना करो, क्योंकि इससे जो होता है हमारा स्किन जो होता है इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होने की वजह से जो होता है ये कैंसर कोजिंग करता है। देखा जाए तो विदेशों में जो होता है ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी रूप जो है अपना पसार चुका है, तो विदेशों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत काफ़ी फैली हुई है। अगर बात किया जाए यहाँ कैंसर की, तो कैंसर एक प्रकार के जो है अब्दुलियन ट्यूमरसिस वृद्धि है। इसमें दो इसको भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं दो भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पर दो तरह के जो है ट्यूमर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कैंसर जो है देखने को मिलेगा। एक जो होगा बुदम अब्दुल यानी बेनिगेंस ट्यूमर्स, और दूसरा जो होगा दुदम अब्दुल यानी मेलिजेंट ट्यूमर। तो मेलिजेंट ट्यूमर जो होती है और बिगेंस ट्यूमर होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। बात हम करें बिगेंस ट्यूमर्स की, तो ये अपने उदम स्थान पर ही सीमित रहता है, यानी ये दूर तक नहीं फैलता है, एक ही जगह ही सीमित रहता है और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता है। यह अगर कम हानिकारक होता है, इसका दमन जो रोकना आसानी से किया जा सकता है, यानी इसका रोकना बहुत मुश्किल बात नहीं रहता है। अगर हम बात करें जो है दूसरा यानी मेलिजेंट ट्यूमर का, तो मेलिजेंट ट्यूमर जो होती है शरीर के अन्य भागों में फैल भी सकता है और इसकी वृद्धि तीव्र होती है और ये गंभीर चिंताजनक है और इसे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसका दमन कठिन होता है, इसलिए काफ़ी खतरनाक बीमारी के रूप में उभर के आया है। तो इसलिए यहाँ देखा जाता है कि मेलिजेंट ट्यूमर न हो, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर बात करें यहाँ पर लक्षण की, तो आपको पता है जीभ, छाती, गर्भाशय में एक स्थायी गांठ या ऊतकों का सदन होती है। देखिए जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जीभ का जो है कैंसर हो सकता है, और दूसरी जो है सबसे बड़ा गंभीर जो विदेशों में पाया गया है वो छाती कैंसर है, यानी कह सकते हो ब्रेस्ट कैंसर है, और यहाँ तक गर्भाशय में भी ये कैंसर का रूप धारण कर सकता है। कहते हैं शरीर के किसी भी विवर्ग से अनियमित रक्तस्राव या रक्त में शरण विक्षेपण होता है, यानी बार बार ब्लड आने से भी ये बीमारी का मुख्य लक्षण देखने को मिलेगा। कोई घाव जो शीघ्रतापूर्वक ठीक नहीं होता है, तो इसका मतलब है कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, मस्को या घावों के रूप में परिवर्तन हो जाना, मान ली थोड़ा सा फुंसी भी होता है तो वो घाव के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इसका मतलब है कैंसर का ही ये जनक है। कहते हैं स्थायी स्वर भंग यानी खांसी या निगलने में कठिनाई होना भी एक तरह का कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर बात करें यहाँ रोकथाम एवं उपचार की, तो यही बात है कि साल में एक बार कैंसर की जांच अवश्य कराना जरूरी होता है, क्योंकि ये कई बार जो है बॉडी के अंदर छुपा हुआ रहता है। चिकित्सा के परामर्श के अनुसार ही उपचार लें। धूम्रपान, मदिरापान, ठीक है, तम्बाकू चबाना छोड़ दें। जीवनचर्या के नियमित करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। देखिए दोस्तों, धूम्रपान और जो यहाँ पर मदिरापान की बात किया गया है, तो ये मदिरापान और जो ये सब है कई राज्यों में जो है हमारे देश में बैन किया गया है, लेकिन कई राज्यों में जो है इसको धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। इवन कि जब अब कोरोना वायरस का समय था तो सबसे पहले जो है शराब की दुकान ही खोली गई। अब देखिए कि हमारे बड़े बड़े नेताजी को कितना सोच विचार विभिन्न है कि जब भी कुछ होता है प्रॉब्लम तो वो मदिरा पान की ही दुकान को खोलते हैं। आखिर उनको क्या हमारे देश के नागरिकों से प्यार नहीं है? अगर प्यार होता तो कोरोना वायरस में जो है कभी भी जो है ये कहते शराब की दुकानें, मदिरा पान की दुकानें नहीं खोली जाती। तो ये बात आपके लिए भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर इतने पैसे की कमी क्या पड़ गई कि हमें मदिरा को ही खोलना पड़ गया। और आपको पता है कि लोग तो इतना समझदार हैं कि कहते हैं ना, उसमें मौत भी लिखी हुई होती है, वहाँ पर लिखा भी होता है कि कॉजिंग ऑफ कैंसर, ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग कहते हैं ना मन से छूटता ही नहीं है। तो मन से नहीं छूटता है तो ज़िंदगी से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो ये बात बड़ी गंभीरता से हमें सोचने की ज़रूरत है कि राजनीतिक में अपना
राजनीति करते ही रहेंगे, लेकिन आपका जो जीवन है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे कई व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो इस पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितना हो सके मदिरापान ना करे तो ही अच्छा है, सिगरेट ना पिए तो ही अच्छा है, तम्बाकू ना खाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है आपके सेहत को, लंग्स को बर्बाद करके रख देती है। और ये बात कोई दो राय नहीं है या ये फालतू की बात नहीं है। आप टीवी में आए दिन देखते रहते हो और देख के हैरान भी होते हो कि कितना खतरनाक सीन को दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है आप आए दिन जो है हवा में सिगरेट के धुआं उड़ाते रहते हो। थोड़ा सोचिए और विचार कीजिए, क्या धुआं मुंह से निकाल देने को हीरो कहते हैं? ठीक है, इतने बड़े बड़े नेता लोग भी और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बेशक वो फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, वो उनकी कमाई है, लेकिन आप रोडों पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहे हो तो इसमें कौन सी कमाई हो रही है? घर में शराब पी के मारपीट कर रहे हो तो कौन सी इसमें आपकी हीरोपनी दिख रहा है? तो ये बात आपको सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि जितना जल्दी हो जाए इन चीज़ों को त्याग देने में ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर आपको ये आदत लग चुकी है तो जर्नली सी बात है कि जल्दी आपको इसको छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके ह्यूमन सिस्टम तगड़ी है और आपका जो है बिल पावर अच्छी है तो 100% जो है आपको इससे छुटकारा मिल सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बात रहता है। अब बात करें यहाँ पर एक एलर्जी की। देखिए, एलर्जी जो होती है कोई बीमारी नहीं होती है, ये किसी को भी हो सकती है। इवन कि आपको मधुमक्खी काटने से भी हो सकता है, धूल कण से भी हो सकता है, किसी से भी एलर्जी हो सकती है। तो इसको पहचान करना आपके हाथ में है कि किस चीज़ से जो है मुझे प्रॉब्लम आती है। तो देखा जाता है प्रतियोगिता, यानी एलर्जी जो होती है इसमें असंक्रामक जो है समूह के रोग आते हैं। कोई निश्चित कारण पता नहीं है इसका कि किसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि प्रतियोगिता व्यक्ति विशेष कि किसी बाहरी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील, यानी जो यहाँ पर जो है सेंसिटिवनेस के कारण ऐसी होती है, चाहे छींकने, हाँफने, आंखों का बहना, गले का जो है श्वसन नली का शोभन आदि। तो यही जो है प्रत्यजनक यानी एलर्जिक्स परागण एवं पंख, कुछ पशु और कीट, औषधि, दाब और गंध आदि से भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये बातें देखने वाली है और आपको समझने वाली भी। टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मीन्स STD. The STD is a sexual transmitted disease. The disease that is transmitted through the sexual contact are known as a sexual transmitted disease. A sexual transmitted disease are those diseases that are transmitted by their mucous membranes and secretion of the sexual organ. And third, there is rectum and syphilis, is gonorrhea, and the AIDS are some are sexual transmitted diseases. Friend, here a sexual transmitted disease means to STD. Here is the first is acquired immunodeficiency syndrome. There is a STD disease. A first here AIDS. The AIDS is the mean to the acquired immunodeficiency syndrome. It is a pandemic disease. It is a pandemic disease in all over the world. The words immunodeficiency signifies that the immune system become a very big. There is a immunodeficiency mean immune system is very big. It is a disease is cell immediately immune system of their body. There is the most important here. Here the lymphocytes are the main cells of immune system. The T lymphocytes and B lymphocytes is here helper T lymphocytes play a great role in the regulating the immune system. There is a damage to the destructions of the helper lymphocyte lead to be the development of a cellular immunodeficiency, which make the is a patient susceptible for wide variety of infection. Here show the AIDS virus is a HIV, the immunodeficiency virus. Here there is a shape of the virus shape and RNA, and there is a made by the protein. The protein is the most important here, and the RNA is the center point and barrel capsid here. There is a barrel show of HIV means human immunodeficiency virus. There are HIV. The mode of transmission of AIDS may be transmitted through any of following means. The first here, a sexual contact with the affected person. In India, the most common route of HIV transmission is through the unprotected heterosexual sex. There is a most of transmission on India. There are unprotected intrasexual sex and using the some syringe and that use a affected person, and the blood transfusion which is the contain human
human immunodeficiency virus, and the organ transplantation of the affected person, and artificial inseminations there is a mainly causing, and from mother to newborn there is a baby during the process of giving birth. There is a mode of transmission, and here incubation period here the average period is a 28 month, so it may be range between to the 15 to 57 month. Here is the symptom. The sufferers may be show one or more of following symptom or types of lung disease developed is a tuberculosis. There is a first symptom here. The lung disease is developed for tuberculosis. A skin cancer may be observed and nerves are affected, and brain is badly damaged with the loss of memory, ability of speak and to be a think. And the next year, the number of platelets is the thrombocytes they become a less, and which may be cause of hemorrhages. The hemorrhages here is the platelets is down, and in a sub case of patient show the swelling, lymph node, and fever and loss of weight. A fully blow is disease at a peak. The AIDS patient may be die with 3 years. There is a most here. Here is a prevention and cure. No medication or vaccine is now as to be available against the HIV infection. There is no vaccines and no medicines available for a HIV infection. Therefore, care has to be taken through the following measure. The first here, there should be not be any sexual contact with the person who has a HIV infection, means STI. Since the STIs cause some damage to the genital area and mucous layer, and thus the facilitate the entry of HIV into body, and use a disposable syringe and the needle. There is a disposable syringe and the needle. The blood to be transfused to be need a person should be free from HIV germs. That is the most important. The 4 point here, prostitutions and the homosexuality should be avoided. There is the most important here. Prostitutions and homosexuality is all around area, and their use of the condom should be avoided to use to do intercourse. That is the most important. The use of condom should be avoided to use the doing to intercourse. The next here is a control. AIDS can be detected by the ELISA test. There is a ELISA test in here of AIDS regarding, and there are 3 points which we are important to control STD. The partner notification, identification of the potentially infected contact, examination of treatment, and education of STD. This should be a part of general education and screening of STD. There are serological screening of groups such as a blood donor and human before a giving birth. Here one important fact about the HIV transmission. The HIV is a weak virus and hard to be infected with. It cannot be transmitted through the air and water and outside the human body. A person cannot get AIDS by the hugging and sneezing of the infected person and the insect bite, including mosquito. On sharing the same comes plate, glass, handkerchiefs, and canes and the cutters. And a person cannot be AIDS by using a public toilet, swimming pool, shower, and telephones. HIV cannot be transmitted by the beginning near to the someone, touching someone, is working with someone who is suffering from AIDS. There is a most important fact from HIV transmission. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है यौन संचरीय रोग, यानी जो है एसटीडी रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहते हैं, यानी एसटीडी। देखिए ये यौन संपर्क से फैलने वाली बीमारी है। कहते हैं यौन संपर्क से जो है संचारित रोगों को यौन संचरीय रोग कहते हैं, और इसको जो साधारण नाम जो है एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है। तो फुल फॉर्म के रूप में अगर आ जाए तो आप याद रखना कि इसको जो है यौन संचरीय रोग कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। कहते हैं यौन संचरीय रोग वह रोग है जो श्लेष्मा झिल्ली और यौन अंगों के प्रसव यानी स्वेद के कारण होता है। यानी देखिए कहते हैं यौन अंगों जो होती है वहाँ से जो है श्लेष्मा सुलेशन करती है, यानी श्लेष्मा निकलती है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। गले व मलाशय के द्वारा भी संचलित होने की आशंका बनी रहती है। कहते हैं अगर देखा जाए पतंशांत यानी सिफिलिसिस यानी गोनोरिया
और एड्स आदि जो है यौन संबंधी रोग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ है, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। इसमें जो उपसाधक यानी जो है अतःशाक कहलाता है, और सिफिलिस हो गया जो सुजाक के होते, या गोनेरिया ले लो तो वो भी सुजाक के रूप में होता है। सबसे बड़ा बीमारी जो है यहाँ पर एड्स है। एड्स जो है विश्वव्यापी बीमारी है, जिसको जो कि यौन संचारी रोग के कारण होता है, यानी यौन संबंध बनाने के कारण ये बीमारी अधिक फैलती है। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला जो है आज एड्स। एड्स क्या है? तो एड्स को अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी, एस का मतलब सिंड्रोम। अगर हिंदी में इसको रूपांतरित करें तो उसका मतलब होता है उपसर्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण, यानी अभिलक्षण कह लो या सिंड्रोम कह लो, बात इतना ही रहेगा। तो ये उपसर्जित प्रतिरक्षाहीनता जनन सिंड्रोम कहलाता है, क्योंकि इसमें जो होती है प्रतिरक्षा की जो हीनता हो जाती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो है कार्य करना बंद कर देता है, यानी हमारा ये प्रतिरक्षा तंत्र पे जो है अटैक करता है। यह एक विश्वव्यापी रोग है और कहते हैं ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। रोगक्षम यानी प्रचार यानी इम्यूनोडेफिशिएंसी का आशय रोगक्षम तंत्र का जो है काफ़ी निर्बल हो जाना, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है बिल्कुल लाचार हो जाता है, बिल्कुल ही जो है निर्बल हो जाता है। ये रोग शरीर की जो कोशिका प्रतिष्ठित जो है प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, और प्रतिरक्षा तंत्र पे भी इसका अटैक होता है। इसमें देखा जाए कि लशकाणु व प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं हैं, जैसे टी लसिका कोशिका व बी लसिका कोशिकाएं। कहते हैं सहायक टी जो है लक्षाणु प्रतिरक्षा तंत्र के नियमन में एक बड़ी भूमिका निभाती है। सहायक जो है लसिकाणु के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से एक कोशिका प्रतिरक्षा अपर्याप्त विकसित होती है, जिसके कारण रोगी विभिन्न प्रकार के संक्रमण के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो टी लसिका कोशिका और बी लसिका कोशिकाओं के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भूमिका रहती है, और कहते हैं कि एक कोशिका में प्रतिरक्षा अपर्याप्त विकसित होती है, जिसके कारण ये काफ़ी संवेदनशील हो जाती है। अगर हम यहाँ देखें जो है HIV का जो है स्ट्रक्चर देखें, जो एड्स का ही है, ये चित्र जो आपको दिख रहा होगा ये जो है एड्स का ही है, ठीक है ना। एड्स का जो वायरस होता है HIV, इसका ही रूप यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है। HIV का मतलब यही होता है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी जो है मानव हिंताजनन विषाणु। तो ये जो होती है दोस्तों, अगर देखा जाए इसकी वायरस के स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये जो होती है ग्लूकोप्रोटीन का बना होता है, यानी इसकी बाहरी जो खोल होती है वो प्रोटीन का बना होता है। इसलिए जो है इसको ख़त्म करना संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता ही कि हमारा शरीर जो है प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। और मान लीजिए हम प्रोटीन को नष्ट करने के लिए, यानी अगर हम वायरस के ऊपर जो प्रोटीन लगी हुई है उसको नष्ट करने के लिए हम अगर मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे ही जो प्रोटीन से बना हुआ शरीर है उनको ही नष्ट करने लग जाएगा। इसलिए जो है दवा का भी इस पर कोई असर नहीं रहता। अगर आप दवा भी इसको मारने के लिए देते हो तो हमारे प्रोटीन मर जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों की मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसलिए ये लाइलाज बीमारी है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई इसका कोई दवा है। तो इसका सबसे बड़ा दवा तो यही है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना, और दूसरी बात जो है इसके बीमारी होने का कारणों का आपको सही सही ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो इसमें जो है ये RNA के कोडिंग से बने होते हैं RNA, ठीक है, और वायरल कैप्सूल भी आपको दिखेगा इसमें कार्ड सेक्शन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीमारी है, और इसके बारे में आपको भी गंभीर होने से सोचने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कहते हैं ये बीमारी फैलने के कई कारण हैं। चलिए देखते हैं उन कारणों की हम बात करते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही जो है सुचारू और शांत दिमाग से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं संचरण विधि, क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन है और कहते हैं ये जान लेके ही छोड़ती है। ना तो इसका कोई वैक्सीन बना है, ना कोई इसका इलाज है। इसका इलाज एक ही होता है कि आप अपना ह्यूमन सिस्टम तगड़ा करके रखिए, लेकिन आप समाज में जीने लायक भी नहीं रह जाती हो, क्योंकि समाज इतना उत्पीड़न करता है व्यक्ति को कि कहते हैं ना उसको जीना भी दुश्वार हो जाता है। इसलिए जितना हो सके इस तरह की बीमारी से बचा जाए, यही सबसे फ़ायदेमंद रहता है। अगर इसके फैलने की बात करें तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, यानी जो है असुरक्षित जो है सेक्स करने से जो है ये बीमारी फैलती है, ठीक है, यानी यौन संपर्क से ये फैलती है। भारत में सबसे सामान्य मानव प्रतिरक्षा विषाणु यानी HIV ट्रांसमिशन के संचरण का पथ जो है असुरक्षित इंटरलिंगिंग यानी हेटेरोसेक्सुअल सेक्स संभोग या फिर मिथुन है। देखिए ये हमारे देश में सबसे बड़ा जो है
ये आकर्षण होती है, कहते हैं गलत कदम जो है लोग उठाते हैं। ठीक है, कहते हैं कभी भी अगर पति पत्नी आप विवाहित हो तो पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर वफादार रहे, यही सबसे इम्पोर्टेंट इस बीमारी का बचने का तरीका है। अगर मान लीजिए आप दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संपर्क बनाते हो, शारीरिक संबंध बनाते हो, और मान लीजिए उसको एड्स रहा हो तो आपको भी एड्स हो जाएगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो इसलिए जो है सबसे बड़ा इस बात को भारत में बताया गया कि लोग जो है सेक्स के प्रति जो है काफ़ी आकर्षित रहते हैं। तो आकर्षित रहते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा उस समय, कहीं आप एड्स को तो निमंत्रण नहीं दे रहे हो। बेशक लिए आप सेक्स से बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन बीमारी से जो है ज़िंदगी भर के लिए आपकी खुशी नष्ट कर देगा। तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप ईमानदार रहो, कहते हैं जितना हो सके अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहो, यही आपकी इसमें गुण को दर्शाता है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये बीमारी जो है आए फैलने की चांसेस बढ़ जाता है। और याद रखना कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आप याद रखना कि आप 5 या 6 साल से अधिक ज़िंदा रहना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत खतरनाक बीमारी है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें जो है संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई उसी सुई के दोबारा प्रयोग में लाने से होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ड्रग्स ले रहा है, उसके अंदर जो है HIV की वायरस पहले से ही मौजूद है और वो अपने जो है नसों में लेता है, ड्रग्स ले रहा है, और आप भी उसी सुई का इस्तेमाल करते हो, तो याद रखना कि आपको भी एड्स हो चुका है। क्योंकि उस व्यक्ति को एड्स था तो आपको भी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी ब्लड कांटेक्ट होगा तो एड्स होना स्वाभाविक बात होती है। और ये मैक्सिमम उन क्षेत्रों में देखा जाता है जहां व्यक्ति जो है ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग्स से जितना बचोगे उतना एड्स से बचने की चांसेस आपकी बढ़ जाती है। कहते हैं मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV युक्त जो है रुधिर चढ़ाने से भी होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का आपने जो है ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड लिया, अब वो HIV पॉजिटिव था, और क्या हुआ, गलती से क्या हुआ, डॉक्टरों ने इसका जो है HIV टेस्ट नहीं किया। तो अगर यही ब्लड किसी और दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाए तो जर्नल सी बात है कि उसको भी HIV ग्रसित हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है डॉक्टरों को बहुत ही समझदारी से और सोच विचार करके जो है ब्लड डोनेशन करवाना चाहिए और देखना चाहिए किसी में एड्स का जो विषाणु तो नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रख दिया मैंने, जो आपको समझना है। अगर देखा जाए तो आगे जो है संक्रमित व्यक्ति के अंग का प्रतिरोपण, यानी जो है आपको पता ही है कि बहुत से ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, तो इससे भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें कहते हैं जब भी ट्रांसप्लांटेशन होती है तो इसमें सावधानियां बरतने की अत्यंत महत्वपूर्ण बात रखता है, क्योंकि अगर इस बात का अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो व्यक्ति के बेशक लिए आप अंग ट्रांसफ़र कर रहे होगे, लेकिन वो जो है जीवन में ज़्यादा दिन जिंदा रहना उसके लिए संभव नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सावधानियां नहीं बरती। ठीक है, और आपकी वजह से क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो था HIV एड्स से पीड़ित हो गया। अगर आगे बात देखा जाए तो संक्रमित व्यक्ति के अंग जो है प्रतिरोपण के बारे में तो आपको बता ही मैंने दिया है। उसके बाद कृत्रिम गर्भधारण, देखिए आज बेशकली हम IVF को जो है बहुत चमत्कारी नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बताया कृत्रिम गर्भधारण यानी जो आर्टिफिशियल होती है गर्भधारण, उससे भी HIV होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो कहते हैं बहुत चीज़ें जो है हमारे लिए खतरनाक भी होता है कि कृत्रिम गर्भधारण करने से भी HIV का खतरा बना रहता है। तो ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। प्रसव के समय माँ से शिशु को भी होना, मान लीजिए प्रसव के दौरान जब बच्चा शरीर से बाहर निकल, देखिए अगर बच्चा गर्भ में है तो HIV से वो सुरक्षित है, क्योंकि ब्लड जो है छान के उसके बॉडी में जाता है। लेकिन जब प्रसव होती है तो बच्चे और माँ का ब्लड कुछ हद तक जो है अलग से मिलता है, क्योंकि वो प्लेजेंटा से दूर हो जाता है। तो इस वजह से जो है प्रसव के दौरान शिशु में भी होना संभव है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट जो फैलने का कारण बनता है वो है नाइयों के द्वारा। मान लीजिए कोई नाई है, अगर किसी को बाल काट रहा है, ठीक है, उसको उस तरह लगाया है, अगर वही उस तरह आपको भी यूज़ कर रहा है तो 100% आपको भी एड्स होने के चांसेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही ब्लेड यूज़ किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एड्स से पीड़ित है और वो नाई के पास आ गया है और वो अपना दाढ़ी या कुछ भी बनवाया है, तो मान लीजिए उसने उस तरह का उपयोग किया है, अगर वो इस तरह जो है गलती से थोड़ा कट भी लग जाती, थोड़ा सा भी कट लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि दाढ़ी बनाते टाइम थोड़ा बहुत कट लग ही जाती है, तो वो ब्लड जो होगा उसी ब्लेड पे आ जाएगा और दोबारा वो व्यक्ति जो है दूसरा इस तरह इस्तेमाल करेगा, दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा, तो वही उस तरह में जो ब्लड लगा हुआ होता है, तो इससे अगर मान लीजिए उसमें भी कट पड़ जाता है तो 100% जो है इसको एड्स
हो जाता है। तो ये बात जो है बड़ी समझदारी से देखने वाली बात है कि जब भी आप अगर नाई के पास जाते हो तो देखना कि वो ब्लेड चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहते हैं अपनी समझदारी भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। साथ में अगर मान लीजिए कहीं डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। कहते हैं कई कई व्यक्ति जो होते हैं इतना लालची होते हैं कि इंसानों के जानों से खेल जाते हैं। तो कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर क्या करता है, एक ही इंजेक्शन से कई व्यक्तियों के जो है इंजेक्शन दे देता है। मान लीजिए वो इंजेक्शन एक इंजेक्शन का प्रयोग कर रहा है और उसमें जो है, क्योंकि इंजेक्शन जो होता है ब्लड कॉन्टैक्ट में जाता है और उसमें ब्लड के बूंद तो लगते ही लगते, जनरल सी बात है। अगर वही इंजेक्शन अगर दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग करता है और वो व्यक्ति पहले से एड्स से ग्रसित था, अगर वही दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति पे सिरिंज का इस्तेमाल करता है तो उसको भी एड्स होने की चांसेस 100% रहता है। तो आप जब भी अगर डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड टेस्टिंग के लिए या कहीं लैब में जाते हो तो देखना कि वो व्यक्ति जो है आपके सामने रेपर फाड़ते हो, क्योंकि रेपर फाड़ने से ये पता लग जाता है कि वो सील बंद था, ठीक है। तो ये कहते हैं ये देखने वाली बात नहीं, लोगों को जागरूक होने वाली बात है, क्योंकि कहते हैं ना एक की गलती की वजह से दूसरे को जो है लाइलाज बीमारी मिल जाता है, तो इससे जो है उसके जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति इन चीज़ों से संबंधित से जुड़े हुए हैं उनको इन सब बातों के ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हमारा देश जो है स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कारणों से जो होता है एड्स फैलता है, जो कि मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर बात देखा जाए इसके उद्भव भवन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये औसत अवधि जो होता है 28 मास होती है। हालांकि यह 15 से 27 माह के मध्य ही आपको पता लग जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है 15 से 27 हफ्ता होती है। अगर लक्षण देखने को देखा जाए तो लक्षण में जो तो यही बात दिखती है, पीरियड में निम्न लक्षण देखने को मिलता है। सबसे पहले यही बात होता है कि एक प्रकार का फेफड़ा का रोग विकसित होने लग जाता है। देखिए फेफड़े के रोग कई कारणों से होती है, या एचमा हो या तपेदिक हो, उससे भी हो जाती है, लेकिन एड्स का भी यह लक्षण रहती है कि फेफड़े को ही इन्फेक्शन करती है सबसे पहले। तो ये बात ये नहीं डर जाना है आपने कि अगर फेफड़े की इन्फेक्शन है तो एड्स ही है, ऐसा कोई दो राय नहीं है। आपको चेकअप करवाने की आवश्यकता है। त्वचा में कैंसर भी दिखाई देने लग जाता है, यानी त्वचा में कैंसर भी इस बीमारी के कारण हो सकती है, और जनरली कैंसर भी हो सकती है। तो इसमें जो है सबसे अच्छा जो है टेस्ट करवा लेना फ़ायदेमंद रहता है। उसके पश्चात देखा जाए तो तंत्रिका को भी काफ़ी प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को भी ये काफ़ी प्रभावित करता है। कहते हैं मस्तिष्क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे स्मृति व औपचारिक शक्ति का हर्ष हो जाता है, यानी आपकी याददाश्त से ख़त्म होने लग जाएगी और आपकी स्मृति भी सारी खत्म हो जाएगी। इसमें रक्त जो है पटकाने में प्लेटलेट्स विस्मृता थर्मोसाइट की संख्या में कमी, जिसके कारण रक्तस्राव हो सकती है। देखिए इसमें जो होता है दिन प्रतिदिन जो होता है प्लेटलेट्स डाउन होते चला जाता है, जिसकी वजह से अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाए, अगर हज़ारों में आ जाए तो इंसान की मृत्यु संभव हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होती है लाखों में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ये हज़ारों में हो जाती है तो 17,000 से कम होती है तो इंसान को जो होता है डेंजरस स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये बात भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। अगर चरम स्थिति में फूली हुई लसिकाएँ देखा जाए, ज्वार का भार में कमी दृष्टिगोचर होती है। इसमें ये भी बात होता है दोस्तों कि दिन प्रतिदिन जो दिन होता है जो है वज़न कम होती चली जाती है, तो ये भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनता है। रोग के जो है चरम सीमा पर रोगी 3 वर्ष के अंदर मर जाता है, यानी अगर रोग जो है चरम सीमा पे आता है तो उसका जीवन अवधि जो होती है 3 वर्ष ही होती है। लेकिन कहते हैं इस बीमारी के कारण जो है कई लोग के जो है ताने भी व्यक्ति को जल्दी ही मरने पर विवश कर देता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एड्स के व्यक्ति है तो एड्स जनरली ऐसे नहीं फैलता है, ठीक है। याद रखना एड्स फैलने का सिर्फ एक ही कारण होता है, ब्लड कॉन्टैक्ट। ब्लड कॉन्टैक्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा है, हम हेल्प करने जा रहे हैं, हमारे हाथ में भी कट लगा हुआ था, हमारे हाथ में भी कहीं चोट लगा हुआ था। अगर उस व्यक्ति को तुम उठाते हो या किसी तरह से हेल्प कर रहे हो और मान लो आपको चोट लगा हुआ है, अगर आपके ब्लड के साथ उसका ब्लड संपर्क में गया तो एड्स होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तब होती है, एड्स तब होती है जब जिस व्यक्ति को आप हेल्प करो वो एड्स से पीड़ित हो या आप एड्स से पीड़ित रहे हो और आपके बॉडी से ब्लड निकल रहा हो। तो याद रखना इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं है, हेल्प करना सबसे बड़ा परम धर्म है। लेकिन कहते हैं अपना सुरक्षा भी आपके लिए ज़रूरी रहता है, तो हर चीज़ों की जो है सोच विचार के करना चाहिए। कहते हैं अगर कोई है घायल है, कोई भी व्यक्ति है तो उसका हेल्प करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बट अपने आप को भी सुरक्षा रखना ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है, क्योंकि
याद रखना कि एड्स जो होती है सिर्फ ब्लड कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग ही फैलती है और इसको फैलने का कोई कारण हो भी नहीं सकता और नहीं है। कहते कई व्यक्ति तो ये भी सोचते हैं कि खाना खाने से हो जाता है, हाथ मिलाने से होता है। ऐसा एड्स नहीं फैलता, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये एड्स है। एड्स हमेशा ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से ही फैलती है। आगे जो है रोकथाम एवं उपचार, कहते हैं HIV संक्रमण को रोकने के लिए कोई दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। ये तो मैंने पहले ही आपको बात बताई थी कि निम्न प्रकार से सावधानियां बरत के ही इसको जो है बचा जा सकता है। सबसे पहली बात तो इसमें यही आता है रोकथाम में कि HIV या यौन रोग से संक्रमित व्यक्ति से किसी प्रकार का यौन संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो यही आता है कि कोई भी HIV अगर व्यक्ति हो तो उसके साथ यौन संपर्क यानी जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अगर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो तो 100% आप एड्स को निमंत्रण दे रहे हो। कहते हैं क्योंकि यौन रोग से संक्रमित जो है स्थिति में संक्रमण जनक क्षेत्र में श्लेष्मा परत की क्षतिग्रस्त करता है, इसे HIV शरीर में प्रवेश सुगम हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो सिस्टम के ऊपर जो होता है श्लेष्मा लगेगा ही लगेगा और श्लेष्मा लगेगा तो इसका मतलब है कि एड्स होगा ही होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भी पेनिस होती है उसके जगह पास में जो होता है खुरदुरा पार्ट होती है तो वहाँ पर जो है श्लेष्मा लगती है और वहाँ से जो है अब्जॉर्ब भी करता है बॉडी। तो श्लेष्मा के रिगार्डिंग भी जो है HIV शरीर में प्रवेश करने का सुगम रास्ता मिल जाता है। दूसरी बात जो है इंजेक्शन या सुई का एक बार प्रयोग कर उसका जो है निपटारण भली भांति कर दे, दोबारा प्रयोग ना करें। इसमें मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये ड्रग एडिशन के रूप में होती है या आप दूसरा जो होता है डॉक्टरों द्वारा जो इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है एक बार उपयोग करने के बाद उसको जो है निपटारण कर देना सही रहता है, यानी नष्ट कर देना, डिस्पोजल कर देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। अगर देखा जाए जरूरतमंद व्यक्तियों में चढ़ाए जाने वाले रक्त HIV मुक्त होना चाहिए, जो डॉक्टरों को हमेशा देख के ही चढ़ाने की कोशिश करना चाहिए कि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हो उसको HIV मुक्त ही ब्लड को चढ़ाएं। वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता को बचना चाहिए, समलैंगिकता की वजह से भी होता है दोस्तों। ठीक है, समलैंगिकता हो या वेश्यावृत्ति, कहते हैं वेश्यावृत्ति में तो आजकल आए दिन छापे पड़ते रहते हैं और आए दिन वेश्यावृत्ति की जो है कांड चलती रहती है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश में एड्स कितने फैलते चले जाएंगे, क्योंकि वेश्यावृत्ति से होता है। वेश्यावृत्ति में जो होता है एक व्यक्ति कई व्यक्तियों से जो है शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर HIV एड्स पीड़ित हुआ तो ये न जाने कितने व्यक्तियों को जो है HIV एड्स बना देगा। आपको पता है कि हमारे कई देश जो है यहाँ पर हमारे देश को नष्ट करने के लिए जो है बॉर्डरों पे जो है HIV एड्स पीड़ित महिलाओं को भेजता है जिससे वहाँ जो है एड्स फैलाया सके। तो ये बहुत बड़ा जो है बायो वेपन है जिसको बहुत खतरनाक भी कहा जा सकता है। अगर बात देखा जाए संभोग के समय सदैव जो है निरोध प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर बात किया जाए नियंत्रण का तो इसके में तो सबसे पहले आपको अगर कुछ भी शक लगता है तो इसके लिए आपको एलिसा टेस्ट जो है उपलब्ध है, यानी एलिसा परीक्षण से आप जो हो HIV एड्स का पता लगा सकती हो कि आप में है भी कि नहीं। कई व्यक्ति को तो कहते हैं एड्स के नाम से ही उनकी जो होती है मृत्यु हो जाती है, उनके डर के कारण ही मृत्यु हो जाती है। तो HIV सही जांच परख करना ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ऐसे गलती करो ही ना जो आपको जो है HIV एड्स जैसे बीमारी को निमंत्रण देने की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है, तो डरने की बात क्या, जब आप ईमानदार हो तो डरने की बात ही नहीं रहती। ठीक है, तो ये जरूरी बात है यहाँ है। कहते हैं अगर यौन संचारी रोग को नियंत्रण करने के 3 मुख्य बिंदु है। सबसे पहला तो यही है कि यौन साथी की घोषणा, यानी यौन साथी घोषणा सबसे जरूरी बात होता है। प्रभावी संगति संपर्क की पहचान, परीक्षण और उपचार ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। कहते हैं यौन संचारी रोगों को शिक्षा, यानी प्रभावी संक्रमण की पहचान और परीक्षण एवं उपचार के ऊपर शिक्षा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ये वीडियो सभी बच्चों को अगर मिल जाता है, सभी बच्चे अगर देखते हैं समझते हैं, तो मैंने हर एक बात पे जो है बहुत विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया है। तो ये बच्चे जो होंगे 100% जो होंगे ऐसे गलत काम नहीं करेंगे जिससे एड्स फैलने की चांसेस होगा, या कहीं भी वो जाएंगे कुछ भी कराएंगे तो वो हर बातों पर अलर्ट रहेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, क्योंकि आपके जो है दूसरा आप जो लगाते हो लव स्टोरी वाली सॉन्ग या ये सब लगा देते हो उससे उनका सिर्फ माइंड डिस्टर्ब होता है, उनको खुश मिलता है। लेकिन अगर ये लगाते हो तो उनको कुछ ज्ञान मिलता है, क्या पता वो ये वीडियो देख के समझदार बन जाए। और मान लीजिए वो समझदार बन जाते हैं तो कई मानने में देश की भी भलाई होगी और उनके माता पिता के लिए भी ये एक अच्छा सबक बन जाता है।
तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचे और दूसरे व्यक्ति भी इस बात से जो है अपना सही ज्ञान दर्शन कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर देखा जाए यौन संचय रोग को जो है क्रमवक्षण यानी स्कैनिंग, रक्तदाताओं एवं बच्चों के प्रसव पूर्व महिलाओं को जो है सीरम संबंधी जांच होनी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तभी आप देखते हो कोई अगर स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसको HIV एड्स भी वहाँ पर जो है चेकअप की जाती है, क्योंकि थोड़ा भी जो है भारत सरकार द्वारा थोड़ा भी शंका नहीं रहती है कि बच्चों में जो है एड्स की जो है वायरस जाए। यहाँ पर एक बात आती है HIV संक्रमण संबंधी कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है। कहते हैं HIV एक दुर्बल विषाणु और इसका संक्रमण आसानी से नहीं होता है। ये मानव शरीर के बाहर वायु या पानी के माध्यम से संचारित नहीं होती है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसका संपर्क किसी से नहीं होती, सिर्फ ब्लड कॉन्टैक्ट से ही होती है। कहते हैं वायरस जो होती है दोस्तों, अगर शरीर से बाहर है और मान लीजिए नीचे ब्लड है तो वो मरा हुआ के समान है, वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, वो आप तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप उसको संपर्क में जाओगे, जैसे टच करोगे, तो अगर आपके बॉडी में माध्यम है तो आपके बॉडी में प्रवेश करते ही वो जिंदा हो जाता है। यानी एक ऐसा ये कहते हैं ना ऐसा जीव है जो शरीर से बाहर मरा हुआ है और जैसे शरीर के संपर्क में आता है जिंदा हो जाता है। और इसका कोई अपना मैकेनिज्म नहीं होती है, ये आपके शरीर के मैकेनिज्म का यूज़ करता है। यानी आपके शरीर का जितना भी इम्यून सिस्टम है उसका यूज़ करने लग जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बहरूपिया है। ठीक है, जैसे आपने कोरोना वायरस की भी जान लिया है कि कोरोना वायरस जो है समय समय पर अपना म्यूटेशन चेंज करती रहती है, तो इससे जो है छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। अब जीवन भर हमें कोरोना वायरस से सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन जिनके इम्यून सिस्टम तगड़े होंगे उन पे ये कोरोना वायरस कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि HIV एड्स जो होती है वो सिर्फ ब्लड कॉन्टैक्ट से ही फैलती है, पानी, वायु या भोजन के थ्रू ये नहीं फैलती है। कहते हैं एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति को छींकने या आलिंगन करने से, कीड़े मच्छरों के काटने से, एक कंधी या एक प्लेट, गिलास, रुमाल, चाकू या छुरा कांटे के प्रयोग के संक्रमित नहीं होता है। यानी कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति का, अगर HIV व्यक्ति का ही आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे एड्स नहीं होगा। जब तक यौन संपर्क ना हो, जब तक जो है ब्लड संपर्क ना हो, तब तक एड्स होने की चांसेस नहीं रहता है। अगर देखा जाए सार्वजनिक उपचार, शौचालय, तैरने के तालाब, घरे, टेलीफोन के प्रयोग से इसका संक्रमण नहीं फैलता है। ठीक है, इसका इस सब चीज़ों से कोई इसका वास्ता नहीं है। HIV संक्रमण जो है संक्रमित व्यक्तियों के जो है समीप पशुपास या साथ काम करने से नहीं फैलता है। यानी अगर आप समीप काम करते हो, साथ में खाते हो, तो इससे ये बीमारी कोई इफेक्ट नहीं करता है। कोरोना वायरस बेसिकली करता है, बट HIV एड्स में ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखता है, सिर्फ ये ब्लड कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर इज अ सिम्फिलिस। Syphilis here is a causative organs is a tetraphenema is a polydium as a long corkscrew bacteria. The mode of spread here sexual contact with the infected person. The syphilis is here. The incubation period is a symptom of disease occur in about 10 to 19 days after the contractions, but generally is noticed in a 3 to 4 weeks after getting infected with the bacteria. The next here is a symptom is a symptom of the syphilis is occur in the stage. The common symptom of syphilis include a fever and cords on the skin in the thorax and the urogenital area, especially is a vagina or penis, and anus rectum is a mouth. There is a thorax and the urogenital is a skin square in the skin. There is a vagina and penis and anus and rectus and the mouth. So the form is around often to the painless and rushes on the hand, feet and palm. The white patches in the mouth and against like a wall in the various area. Hair fall in the patches from the infected area. And the fifth hair, the hair fall in the patches from the infected area. And the sixth, the last three symptoms can be very serious. There is the last three symptoms can be very serious. They often become an internal and affected organ like a brain, nerves, liver, eyes, blood vessels, bone and joint will show up after about 10 years of getting the infection. It can be lead to the paralyzed and the blindness and dementia and sterility. That is the most important symptom, and prevention occur here. Having sexual
intercommingling with there is one person. There is the most important here. The sexual interventions with the one persons avoiding to the perpetuations. There is the most important here. The avoiding to the prostitutions and the homosexuality. There is important and presiding to the absences and use of condoms and taking up shade to medical treatment and the maintaining personal hygienic. There is the most important here. The here is the gonorrhea is the next topic. The gonorrhea is the most important here. Gonorrhea is a sexually transmitted disease, mean STD, and that is often is involved uterus, vagina, penis, cervix, anus, and the thorax as is a target site. There is a main target sites here: uterus, vagina, and the penis, cervix, and the anus, and the thorax. There is a target site. And according to organism, there is a gonococcus bacterium. There is a causing agent organism here. Gonococcus as a bacterium. Neisseria gonorrhea. There is a Neisseria gonorrhea is a causing agent, and it is a grow of the multiply quickly in a warm moist area of the body, such as the cervix and rectum and mouth. There is a grow quickly of hair, and the mode of separate. Spirit. There is a mode of separate here, having to the multiple sex partner and increasing the risk of the contracting. It's a kind of the as unprotected sex is away or risk. Any kind of contact with the infected persons is also risky. The next year is an incubation period. About 2 to 5 days after getting infected, there are incubation period. And here, symptom. The symptom here is the most important. The first here are the inflammations of the mucous membranes in the urogenital tract. And the warning is the sensations will are passing out urine and intra discharge. And ductal discomfort and pain in the joint and dashes as a flames, mild as a store thyroid. And in a female, it might be cause of sterility. The next is the prevention occur. They are having the sexual contact with the only one person. That is the most important here. And avoiding to the prostitutions and the homosexuality. That is the most important here. Avoiding prostitutions and homosexuality and taking antibiotics such as a penicillium injections and appreciate to the medicine at the appropriate time per doctor advice. In a male, gonorrhea is the primarily affected the uterus, anus, thorax, joint, and eyes. Most of victims of this disease are teenagers and the young adult. One of advances is a complication of gonorrhea is the Buccal septomycia is a blood poisoning. There is a gonococcus is a septomycia is a blood poisoning. अगला बीमारी जो है हमारा दोस्तों सिफिलिसिस. देखिए सिफिलिसिस जो होती है ये भी एक एसटीडी रोग है, ठीक है, यानी लैंग संचरीय ये भी रोग है. ये भी यौन संबंधों से ही फैलती है. कहते रोगजनक जीव होती है ये, इसमें टैपेनोमा पैलिडम्स यानी एक लंबी कंकुरेट बैक्टीरिया होती है. रोग फैलने की विधि तो एक ही है, आपको पता ही है कि संक्रमित व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क होना, यानी जो व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है उससे अगर शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो ये बीमारी जो है उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाएगा. अगर देखा जाए इसकी इंक्यूबेशन पीरियड तो इसका जो होता है 10 से 90 दिन के बाद जो है लक्षण स्पष्ट होते हैं, लेकिन सामान्यतः बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित होने के 3 से 4 सप्ताह में जो है लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं. अब देखते हैं कि इसमें लक्षण क्या प्रकट होते हैं. अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण जो होता है सिफिलिसिस का यही होता है कि ज्वर आएगा त्वचा में, गले में, ठीक है, मूत्र जनन क्षेत्र विशेषकर योनि या शिशन या गुर्दा मलाशय व मुंह में जो अल्सर होते हैं. यानी देखोगे कि योनि होता है, ठीक है, या शिशम होता है, गुर्दा होता है, मलाशय में जो होगा अल्सर होने लग जाएगा. व्रण गोत और जो है पीड़ित होने लग जाएगा. जो हाथों पाँव में जो है हथेलियों में दाने आने लग जाएंगे. इसका सबसे बड़ा कारण है कि हाथ पाँव में जो है हथेलियों में दाने आने लग जाते हैं. मुंह में सफ़ेद धब्बे आने लग जाएंगे, ठीक है. उरु अमूल और जांग के मूल में जो मुहासे के समान मसले आनेंगे, यानी मसल्स आने लग जाते हैं जांग के मूल्य अंगों में. संक्रमित क्षेत्र में बालों का जो है पैच में जो है झरना स्टार्ट हो जाता है, यानी संक्रमित क्षेत्र से बालों का जो है पैच में झरना शुरू हो जाती है. तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर सिफिलिसिस का जो है लक्षण है.
अगर बात किया जाए इसका अंतिम चरण में, तो अंतिम 3 लक्षण काफ़ी हो सकते हैं, यानी 3 लक्षण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भेद जो है अंदरूनी हो जाते हैं और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र और नेत्र, रक्त वाहिका, अस्थियाँ एवं जोड़ों को प्रभावित करती है, जो संक्रमण के 10 वर्ष बाद प्रकट होते हैं। इसे पक्षघात या लकवा, अंधापन, ठीक है, और बांधता यानी बांधता स्टेरिलिटी भी हो सकती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। अगर बात करें इसके रोकथाम एवं उपचार की, तो इसके उपचार और जो रोकथाम है कुछ हद तक HIV एड्स की तरह ही है, क्योंकि इसमें जो है केवल एक ही व्यक्ति के साथ ये लैंगिक संपर्क होना चाहिए, यानी संभोग आप करते हो तो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही करो, किसी और के साथ करते हो तो ये बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाता है। यानी अपने पार्टनर के प्रति सदैव वफादार रहो। उसके पश्चात जो सबसे अधिक फैलती है वो है वेश्यावृत्ति के माध्यम से। कहते हैं वेश्यावृत्ति की वजह से जो है ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, तो वेश्यावृत्ति से जो है आपको दूर रहने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर दूर नहीं रहोगे तो कहते हैं ना 10 मिनट के मज़ा जो है 10 क्या लाइफ टाइम की मज़ा को ख़त्म कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। समलैंगिकता से भी बचना चाहिए, सामान्य लिंग से भी जो है आजकल बहुत फैल रहा है समलैंगिकता, तो इससे भी बचना चाहिए। समलैंगिकता का अर्थ ही होता है सामान्य लिंग, यानी लड़के लड़के जो गलत करते हैं, तो इससे भी ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। तो समलैंगिकता से बचना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, और वेश्यावृत्ति से तो बचना चाहिए तो चाहिए ही, क्योंकि वेश्यावृत्ति से सिर्फ आपका घर नष्ट होगा, ठीक है, आपका जो है कहते हैं शरीर इच्छा खत्म नहीं होगी। उसके पश्चात है संयम बरतना एवं कंडोम का प्रयोग करना। देखिए कंडोम का प्रयोग करने से तो यही होता है कि बहुत सी बीमारी से आप छुटकारा आपको मिल जाता है, क्योंकि ये जो होता है शरीर संबंध बनाते समय भी ये शरीर के संपर्क में नहीं जाता है, आपका सिस्टम जो है नहीं जाता है शरीर के संपर्क में, तो इससे जो है कंडोम हमें बीमारियों से बचा लेता है। कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता रखना, उचित जो है औषधि उपचार लेना भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं शारीरिक स्वच्छता भी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। हमारा अगला टॉपिक जो दोस्तों है सुजाक यानी गोनोराई। नेसेरिया गोनोराई जो है गोनोराई के नाम से ही जाना जाता है, जिसे हम सुजाक भी कहते हैं। कहते हैं ये भी जो है एक यौन संबंधित रोग है, यानी लैंग संचयी रोग है, इसको STD के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संक्रमण के लक्षण क्षेत्र जो है मूत्रमार्ग होता है, योनि होता है, शीशन होता है, गर्भाशय होता है, गीवा होता है, गुर्दा और गला होता है। तो ये जो है जनन अंगों को ही प्रभावित करता है, तो ये जनन अंग जो है काफ़ी इसमें संवेदनशील होते हैं। कहते हैं रोगजनक जीव जो होता है इसमें जो नेसेरिया गोनोराइया नामक गोनोकायस बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी गोनोकायलस जो बैक्टीरिया होता है इसकी वजह से ये जो गोनोरिया नाम की बीमारी होती है, ये शरीर के नम क्षेत्र जैसे गर्भाशय, मलाशय, मुंह, शीघ्रतापूर्वक बढ़ते एवं पनपते हैं। ये जो होता है मैक्सिमम उन क्षेत्रों में बढ़ता है जहाँ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो इस ऑर्गन में जो है ये काफ़ी फैलते हैं। रोग फैलने की विधि तो वही होती है, बहुत से यौन साथी होने पर इनके संक्रमण खतरा बढ़ जाता है, यानी यौन संपर्क से ही होता है, यानी असुरक्षित यौन संबंध से, संभोग से ये बीमारी सबसे अधिक फैलती है। किसी प्रकार का असुरक्षित यौन संबंध सदैव ही खतरनाक होता है, तो ये बात आपको ध्यान भी रखना है कि अपने पार्टनर के प्रति सदैव वफादार रहो, नहीं तो ये सारी बीमारियां आपको लग सकती है। किसी प्रकार के घाव या व्रणों आदि की संक्रमित व्यक्ति के संपर्क भी खतरनाक होती है। देखिए किसी व्यक्ति में घाव हो रखा है, व्रण हो रखा है, तो इससे भी ये जो है बीमारी आपके संपर्क में फैल सकती है, तो ये आपको ध्यान देना है। कहते हैं घावों से भी बहुत फैलती है। अगर हम इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये जो होता है 2 से 5 दिन बाद देखने लग जाता है इसका लक्षण, यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है 2 से 5 दिन। अगर बात करें इसके लक्षण का तो कहते हैं जनन मूत्र पक्ष में जो है श्लेष्मा झिल्ली में सूजन और जलन आने लग जाती है, यानी मूत्र करते टाइम अगर जो है सूजन हो रही है, जलन हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये बीमारी जो है आपको ग्रसित कर चुका है। ठीक है, इसके बाद है मूत्र त्याग के समय, जो मूत्र मार्ग में अस्वस्थ बाहर निकलने के समय जलन, यानी जलन भी महसूस होती है। कभी कभी ये जो होती है दोस्तों जलन इसलिए भी आती है क्योंकि इसमें जो होता है यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यही बीमारी हो गया है, ठीक है। तो ये जलन यूरिन इन्फेक्शन से भी हो सकती है या कम पानी पीने की वजह से भी हो सकती है। तो ये कहते हैं ना सही इलाज, सही बात और सही टेस्ट भी जरूरी होता है। अगर देखा जाए तो ये गुर्दीय कष्ट भी देता है, जोड़ों में दर्द भी इसका लक्षण का मुख्य कारण बनेगा। हथेलियों में दाने का हो जाना, यानी हथेली में दाना, देखिए साधारण रूप से देखा जाए
तो हथेली में दाने नहीं आते हैं, लेकिन इस बीमारी में जो होगा आपके हथेलियों में भी दाने आने लग जाएंगे। गले में भी हल्का वर्ण या दाग दिखेगा। महिलाओं से इससे जो है बांझपन उत्पन्न हो जाती है, यानी इस बीमारी के हो जाने के बाद जो है महिलाएं बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं रह जाती है। तो इस बीमारी से जो है महिलाओं को बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बचने का तो सबसे बड़ा साधन यही है कि किसी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए। अगर देखा जाए रोकथाम एवं उपचार, तो आपको पता ही है कि ये एसटीडी बीमारी के उपचार जैसा ही है, चाहे एड्स हो चाहे आपको सिफिलिस हो, सब उसी के जैसा ही है। कहते हैं केवल एक ही व्यक्ति से शारीरिक संपर्क या संभोग रखें। अब वही बात सब जगह आया है। तीनों बीमारी में आपने देखा ही होगा कि तीनों बीमारी में जो है सबसे पहला बात तो यही रहता है कि अपने पार्टनर के प्रति सदैव वफादार रहो, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है लैंगिक संपर्क ना करो, यानी असुरक्षित संबंध ना बनाओ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता से बचे। देखिए दूसरा बात वही आता है, ये सब जगह यही बात आया है कि यहाँ पर जो है वेश्यावृत्ति जो कि बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, और समलैंगिकता से भी बचना बहुत जरूरी रह जाता है। चिकित्सा के जो है परामर्श के अनुसार जो है एंटीबॉडी जैसे पेनिसिलिन और इंजेक्शन या उचित समय या उचित दवाई का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। पुरुषों में सुजाग जो है मुख्यतः मूत्र मार्ग में हो जाता है, गुर्दा में, गले में, जोड़े, नेत्रों को प्रभावित करता है। ये पुरुषों में होती है। बहुत से जो है किशोर या नववयस्क इसके शिकार होते हैं, यानी सबसे अधिक जो होते हैं जो 18 साल के व्यक्ति होते हैं, इसमें सेक्स के प्रति काफ़ी जिज्ञासा होती है, उनमें ये बीमारी काफ़ी अधिक फैलती है। अगर देखा जाए सुजाग का सही उपचार न होने पर लोग जो है जटिल रूप से धारण कर सकता है, यानी ये काफ़ी जटिल रूप धारण कर सकता है, और इवन यहाँ तक इंसान को मृत्यु तक भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है ग्नोकॉलक्स एस्टोमी ड्रग्स हो सकता है, यानी रक्त का भी जो है प्रसव भी हो सकता है। The next topic is drugs abuse and its a prevention. There is a most important topic here: drugs abuse and its a prevention. Here the first, what is a drug? What is a drugs? A drugs is a chemical substance that change the way our body and mind work. There is a drugs. There is a substance of chemical. There is a change for the way of body and mind work. There is called to the drugs. A pharmaceutically is a preparation of naturally occurring substance used primarily to be alters and the physical and mental functioning of individual is called to drug. There is the most important here. There is a alters the physical and mental functioning of individual is called drugs. So what is a drugs abuse? When drugs are taken to medical reason to treat or cure disease, the both and mental, that is called the medication and therapeutic drugs. But drug abuse occurs when drugs are taken without medical reasons and without medical is a provisions, especially then are taken in amount of strength, frequency and manner that damage the physical and mental functioning of individually is a cough, syrup, painkiller and the tranquilizer are the some common medicines that token are abused. Drug abuse also occurs when to contain of chemicals that have no medical use or benefit are taken, such as sanifying glue and the solvent. The extent of drugs abuse is depend on the quantity of drugs being taken. There is a extent to drugs abuse and depend on the quantity of drugs when you taken and method or frequency of its consumptions and drugs abuse lead to the many serious physical, emotional and social problems. There are drugs abuse lead a many serious physical, emotional and social problem. There is the most important here. And the next, what are the effects of drug abuse? The drug abuse leads to be a number of short-term and long-term effects that are detrimental to health. The first here, short-term effects. Here the short-term effects, these are the effects that appear instantly or a few minutes after the intake of drug. There is a short-term effect. The effect include a sense and well-being of pleasant dominance. And second here, long-term effect. There is a long-term effect. Second,
The constant and exclusive use of drugs over a long period can is causing both physical and mental damage and illness. This includes a failure in the endemic study, improvement, and the interpersonal relationship. Functional drugs increase the risk of contracting STIs and increase risks of the begin involved in the vascular accidents. Adults stop thinking of everything in the life, expect when and how they will be get their next drugs dose. They will be do anything to the dose, including committing crime such as thief and in a container case even murder. Here are some basic fact here. Teenagers sometimes try to smoke to drink just to see how it feels, but they do not start using drugs on the regular basis. And what is the harm is to try to the drugs just to see how it feel. That is the most important for teenagers, and the ideally there is no need for try out of smoke and drink. But there is a great difference between to try out of smoking or drinking compared to drugs. And here, the smoking and drinking once or every occasionally does not be a way lead to the addictions, but drugs are very powerful chemical that can cause is a profound of alternative in the metabolism of body and it's a chemistry of brain. Even though single dose of powerful drugs can start with the addiction of process. When one mind and the body become addicted to a drugs, stopping drugs produce very unpleasant and distresses a mental physical symptom. This make our addiction of proceed with the uses of the drugs. Addict of cannot give up there is a habit useless there get a medical treatment and counseling. You should be not be a boast about your strong willpower assume there you can experiment with the drugs without becoming addicted. And the away keep away from drugs. Do not allow to yourself to the succumb to be a pressure by friends and as acquaintance. If you remain forms your resolve, you can prevent your life from begin run. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है टॉपिक औषधियों का दुरुपयोग एवं इसकी रोकथाम। देखिए बहुत से औषधि जो होती है जीवन रक्षक औषधि होती है, लेकिन अगर इसी को ये अधिक अमाउंट में ले लिया जाए तो ये जो होता है एक जो है दुरुपयोग होता है, यानी नशा का जो है चीज़ बन जाती है। औषधि एक रासायनिक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर एवं मस्तिष्क कार्य पथ में परिवर्तन करता है। जब जो है फार्मास्यूटिकल्स निर्मित प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग मुख्यतः किसी व्यक्ति के शरीर और मानसिक कार्य परिवर्तन के लिए किया जाता है तो उसे औषधि कहते हैं, क्योंकि औषधि जो होती है हमारे शरीर के बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी जो है औषधि का आप दुरुपयोग करते हो तो वो जो हो जाता है ड्रग्स एडिशन में आ जाता है। कहते हैं मादक द्रव्य जो है दुरुपयोग क्या है। अब मादक द्रव्य दुरुपयोग क्या है? जब मादक द्रव्य किसी रोग से इलाज में शारीरिक मानसिक में प्रयोग की जाती है तो उन्हें हम औषधि का प्रयोग या उपचार या चिकित्सालय औषधि यानी थेरेपेटिक ड्रग्स कहते हैं। लेकिन जब मादक द्रव्य दुरुपयोग तब होता है जब औषधि बिना चिकित्सा आवश्यकता के ली जाती है, यानी जो है चिकित्सा के बिना सलाह से आप स्वयं ही ले लेते हो। जैसे विशेषकर जब जो है शक्ति अनबराबरता कायम तरीके वैश्विक शरीर और मानसिक कार्य क्षमता में क्षति का कारण बनता है। खांसी के अगर देखा जाए खांसी का जो है शरबत, दर्दनाक पेन किलर पर प्रशासनिक जो है टैनेजर जो है टैनिक्यूलर्स कुछ सामान्य औषधि है। आपने देखा होगा कि किसी क्षेत्र में अगर शराब बंद कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो है लोग कफ सिरप को ही पूरा बोतल एक साथ ही पी जाते हैं, क्योंकि कफ सिरप में जो दोस्तों होता है वो होता है अल्कोहल से बना हुआ होता है और उसमें कई मात्रा में जो है अल्कोहल की डाली होती है। तो लोग क्या करते हैं इस अल्कोहल का यूज़ कर देते हैं। देखिए अगर आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अगर कुछ ml अगर आप पीते हो तो ये दवाई कहलाती है, लेकिन अगर यही पूरा बोतल एक साथ पी जाते हो तो ये दवाई नहीं कहलाती है, वो एडिशन कहलाता है, ये जो है मेडिसिन का दुरुपयोग कहलाता है। अगर हम पेन किलर की बात करें तो पेन किलर भी एक ऐसा दवा होती है जिसमें शरीर को काफ़ी रिलैक्स देती है। तो लोग क्या करते हैं पेन किलर भी कई अमाउंट में खा लेते हैं, तो ये भी जो है गलत उपयोग होता है। अगर हम प्रशांतक की बात करें ट्रैंक्विलाइजर की बात करें तो ये भी एक औषधि होता है, लेकिन लोग जो है इसका बहुत ही जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। विशेष रसायनों जिनका कोई औषधि लाभ नहीं है जैसे ग्लू
विलायक में घुलनशील भी औषधि दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। औषधि दुरुपयोग की सीमा ली जा रही औषधि गुणवत्ता बारंबारता व उसके उपभोग पर निर्भर करती है। औषधि दुरुपयोग में कई गंभीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणाम देखने को भी मिला है। क्योंकि कहते हैं, अगर देखिए कोई चीज़ को अगर अपनी मात्रा से अधिक ले रहे हो तो वो जो होता है हमारे शरीर पे विपरीत प्रभाव ही डालता है। बेशक नहीं कुछ समय के लिए आपको नशा दे देता है, लेकिन ये शरीर को कई मायने में नुकसान ही पहुंचाता है। तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे मानसिक विकार के लिए और काफ़ी खतरनाक सिद्ध भी रहता है। अगर देखा जाए मादक द्रव्य के दुरुपयोग, नशे की लत के क्या प्रभाव पड़ते हैं। कहते हैं मादक द्रव्य दुरुपयोग का कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो कि जनरली बात है। अगर देखा जाए तो अल्पकालिक प्रभाव जो होती है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो होती है, ये प्रभाव नशा लेने से तुरंत बाद या कुछ मिनट बाद दृष्टिगोचर हो जाती है। जैसे ही आप नशा वाले पदार्थ लेते हो तो आपके बॉडी में नशा चढ़ जाता है। इस प्रभाव के अंतर्गत तो दुर्मस्ती अनुभव और आनंददायक उन्दीपन आदि आते हैं। यानी आपको लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए और इस चक्कर में कई गलत काम भी कर जाते हो। तो ये चीज़ें जो होती है मादक लेने से कई मायने में आपका शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। उसके पश्चात दीर्घकालिक प्रभाव। देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। अनवरत एवं अधिक मात्रा में दीर्घकाल तक नशा लेने से शारीरिक व मानसिक क्षति उत्पन्न हो सकती है। इसके अंतर्गत शैक्षिक, रोजगार संबंधी आपसी संबंधों में असफलता ही मिलेगी। अधिक क्षति, यौन रोगों के संक्रमण का अधिक भय एवं मोटर दुर्घटनाएं आती है। नशे के आदी व्यक्ति केवल नशे के अंगुली खुराक के विषय में ही चिंता करते हैं। इन पाने के लिए चोरी, हत्या भी कर सकते हैं। तो ये तो बात जनरली है कि अगर जिन व्यक्तियों को इन ड्रग एडिशन यानी मादक पदार्थों की आदत लग जाती है, वो कोई भी गलत काम करने से हिचकते नहीं है। वो सारे गलत काम कर जाते हैं, जो कि समाज के लिए और देश के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध होता है। अगर हम यहाँ पर एक मूलभूत तथ्य देखें यानी फैक्ट देखें, तो आपको पता लगेगा कि किशोर कभी कभी धूम्रपान या मदिरापान अनुभव करने के लिए करते हैं, लेकिन ये मादक द्रव्य का नियमित रूप से प्रयोग नहीं करते हैं। मादक द्रव्यों को आजमाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा ये मानते हैं। आदर्श रूप से अगर धूम्रपान और मदिरापान का अनुभव करने कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए भी खतरा का विषय बना देता है। लेकिन धूम्रपान या मदिरापान का एक बार के अनुभव तौर पर करना और मादक द्रव्य का अनुभव पाने के लिए प्रयोग करना, दोनों में बड़े ही अंतर होते हैं। क्योंकि कहते हैं अगर आप एक बार इसे करते हो तो तुम्हें बार बार करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं बुरे चीज़ों को कभी भी अपने आसपास भटकने ना दो, क्योंकि बुरा चीज़ सदैव बुरा ही होता है। उसको ना तो समाज अच्छा कहता है, ना तो आप स्वयं भी उसको अच्छा नहीं कहते हो। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों के लालच, लोगों की तृष्णा है, वो इसको बर्बाद करने पर अतुल है। अगर बात करें एक बार या आधा कदम धूम्रपान या मदिरापान से सदैव नशे की लत नहीं पड़ती है। लेकिन मादक द्रव्य बड़ी शक्तिशाली रसायन है, जो कि शरीर के उपचार में मस्तिष्क एवं रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली ड्रग्स की मात्रा एक खुराक नशे की प्रक्रिया को आरंभ कर देती है। जब किसी का शरीर मस्तिष्क नशे का आदी हो जाता है तो उसमें ड्रग्स को छोड़ने के बड़े अरुचि, पीड़कनादायक और लक्षण दृष्टिगोचर हो जाते हैं। कहते हैं अगर एक बार आपको अगर लक्षण पड़ गया, आदत पड़ गया, तो उसको छुटकारा पाना बहुत ही दृष्टिगोचर होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसे नशे का आदी व्यक्ति को नशे का प्रयोग करते रहना ही चाहता है। तभी तो कहते हैं ड्रग्स कभी लेने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक आपके लिए रहेगा। नशे के आदी लोग बिना औषधि उपचार या परामर्श के अपनी नशे की लत नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि इसको छोड़ना भी बहुत भी दुष्कर कार्य होता है। अगर बात करें कि आपको यदि दृश्य इच्छा शक्ति के बारे में शौकीन नहीं घबराना चाहिए, यह डिंग नहीं मारना चाहिए। डिंगा भी मारना बहुत बड़ी बात होती है, और यह नहीं मान लेना चाहिए कि आप बिना आदी बने ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हो। तो ये बहुत गलतफहमी में आप पड़े हुए हो, क्योंकि कहते हैं ना कोई चीज़ की अगर आदत पड़ गई है, अगर आपने एक बार लिया, दोबारा आपका इच्छा कर रहा है लेने का, तो इसका मतलब है आप उसके आदी हो चुके हो। ये नहीं होगा कि आज ले लेता हूँ कल तो नहीं लूँगा, ऐसे नहीं होता है। बच्चे हो या व्यक्ति क्या कहते हैं, आज लिया है कल नहीं लेंगे, फिर कल ले लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं परसों नहीं लूँगा, फिर परसों भी ले लेते हैं। इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं और वो होता है उनके शरीर पे विपरीत प्रभाव डालने लग जाते हैं। और कहते हैं ड्रग्स सदैव दूर रहें। अब अपने मित्रों या परिचय द्वारा दिए जा रहे दबाव को भलीभूति न हो। यदि आप दृढ़
प्रतिरक्षा रहेंगे तो अपने जीवन को जो है नष्ट होने से बचा पाएंगे। यानी हमेशा हमें जो है अपने अपने आप को विल जो है पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तभी जो है इस बीमारी से आप जो है बहुत आसानी से बच सकते हो। जब तक आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि देखिए दोस्तों, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट रखता है कि ये सब बातें जो है सिर्फ त्रिपान सेंटर में ही आपको मिलेगा। कहीं भी आप अगर पढ़ने जाओगे, कहीं भी अगर वीडियो देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ टॉपिक में जो है थोड़ा मोड़ा बता देते हैं, और जो जनरली बातें होते हैं वो कोई नहीं बताता है। लेकिन त्रिपान सेंटर का जो है एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिले, जिससे वो अपना जीवन को सुचारू रूप से चला सके। तो इसमें जो है त्रिपान सेंटर के साथ आप भी भागीदारी बनो। देखिए दोस्तों, गलत काम करने के लिए हर कोई मना करेगा, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। जितना हो सके इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे कि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकें और एड्स के बारे में भी जान सके। साथ में इस बीमारियों, जो इतने सारे बीमारी की चर्चा किए हैं इस लेसन में, उस सारी बातों को दूसरे व्यक्ति भी जान सके। कहते हैं सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि है अपने जीवन को जो है सुचारू और अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं। तो इसमें आपको अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को जो है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।